Morning students, the second part of the resources and development. Previous day we were discuss about the types of resources and its their owners. Today the topic is resources planning. Students, we need to plan our resources, that how much we have resources and how we it utilize it. So planning is very compulsory, planning is very necessary for our resources. It widely accepted strategy for judicious use of resources. It has importance in a country like India, which has enormous diversity and availability of resources. There are regions which reach certain types of resources but deficient the resources. There are some regions which can be considered self sufficient in term of availability of resources. बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो सेल्फ सफिशिएंट हैं फॉर द इन द केस ऑफ रिसोर्सेज में. देयर आर मेनी रीजन विच हैव एक्यूट शॉर्टेज. बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ पे देयर आर वेरी शॉर्टेज स्पेशली रिसोर्सेज. फॉर द एग्जांपल झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स and coal deposit. Arunachal Pradesh has abundance of water resource but lack of infrastructural development. The state Rajasthan is very well endowed with the solar and wind energy, lack of water resources. Cold desert of Ladakh is relatively isolated in the rest of country. It is very rich cultural heritage but deficient in water. So we need to plan the resources, that how we reach that resources in the particular area. Next, resources planning in India. Resources planning is a complex process which involves first identification and inventory of the resources across the region and the country. मीन्स हमें आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि वेयर आवर रिसोर्सेज आर established are situated and how we reach all the areas that resources. This involves surveying. इनमें हमें करना क्या होता है, सर्वे करना होगा. मैपिंग, qualitative and quantitative estimation and the measurement of the resources. Second, involving the planning structure include the appropriate technology, skill and institutional setup for the implementing resources develop plans. मीन्स हमें प्लानिंग करना होगा और उस रिसोर्स को हाउ वी यूटिलाइज दैट टेक्नोलॉजी एंड स्किल वी हैव, और साथ ही साथ हमें उन टेक्नोलॉजी और स्किल को इम्प्लीमेंटेशन भी कंपलसरी है, सो दैट we develop the plans. Third, matching the resources development plans with overall natural development plan. India has made concerted effort for the achieving the goals of resources planning right from the first 5-year plan launched after the independence. After the independence, we have launched the first 5-year plan to the development of our India. Find out what resources are being developed in our surrounding by the community, village, panchayat, ward level community with the help of community participation. कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमारे आसपास कम्युनिटी के द्वारा, विलेज के द्वारा, पंचायत के द्वारा और वार्ड के द्वारा किए जा रहे हैं. फॉर द एग्जांपल, इन रूरल एरिया मनरेगा, महात्मा गांधी ग्रामीण गारंटी एक्ट योजना के तहत पॉन्ड्स की डिगिंग करना, तालाबों की खुदाई करना, ये भी क्या है, एक रिसोर्स है. वाटर इकट्ठा करते हैं. द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट इन एनी रीजन. किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज होना बहुत ही कंपलसरी है. बट मेयर availability of resource in the absence of corresponding change in technology and institution may hinder development. There are many regions in our country that are rich in resource but are included the economically backward region. बहुत सारे ऐसे हमारे states हैं
फॉर स्पेशली इन इंडिया में कि दे आर रिच इन रिसोर्स बट वो इकोनॉमिकली क्या है, बैकवर्ड। फॉर द एग्जांपल आप देखते हैं झारखंड की जो जीडीपी है, ग्रोथ प्रोडक्ट है या पर कैपिटा इनकम है, वो बहुत लेस है, बट दिस स्टेट इज रिच स्पेशली इन मिनरल रिसोर्सेज में। ऑन द कंट्री देयर आर सम रीजन विच हैव पुअर रिसोर्सेज बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो पुअर हैं स्पेशली इन द सेक्टर ऑफ रिसोर्सेज बट इकोनॉमिकली बहुत बेहतर है। वाई दिस हैपन, ऐसा क्यों है? कैन यू नेम सम रिसोर्सेज rich but economically backward region, some resources poor but economically developed region, give reason for such situation। क्या आप बता सकते हैं ऐसे कौन से स्टेट है? एज आई हैव टेल यू ऑल दैट झारखंड इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज बट इकोनॉमिकली backward region in economically। Kerala, this is there is no natural resources but it is economically developed, or Punjab, economically developed state but there is no mineral resources। In history of colonization revealed rich resources, colonial were the main attraction for the foreign invaders। It was primarily the higher level technology developed the colonial countries। colonial period में means when the Britishers established their colony in India, in that period they made the some cities or some centers, they are technological developed countries and they trade from these countries। their supremacy over the colonies, उनकी सुपरमेसी थी, वो उसके ऊपर राज्य कर रहे थे। there are the resources can contribute development only when they accompanied by appropriate technology। so in this way we need to resource planning so that we will able to reach the resources in those states where they are economically backward in resources also, economically backward and in the resources also। next and most important topic, that conservation of resources। हमें conservation means to protect, we need to protect, we need to conserve our resources। हमें अपने resources को बचाना बहुत आवश्यक है। resources are vital for any development activity। resources का बहुत बड़ा रोल है किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए, बट irrational consumption and over utilization of resource may lead to socio economic and environmental problem। लेकिन हम जब रिसोर्सेस का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हमारे सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के लिए समस्या खड़ी करता है। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्सेज at various level is important and had been much concerned the leader thinker in the past। हमें सोचना पड़ेगा कि how we conserve our resources। for example गांधी जी was very apt। गांधी जी इस विषय में बहुत ही चिंतित रहते थे और उन्होंने कहा था कि being the concern about the resources conservation of these words there is enough for everybody need for not their greed। गांधी जी ने कहा कि हमें रिसोर्सेस की जितनी आवश्यकता हो उतना ही हम उनका यूटिलाइज करें, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार करें, ना कि हम अपने लालच के हिसाब से करें। He placed the greedy for the selfish individual and exploitation nature of modern technology as the root cause for the resource depletion at the global level। he was against the mass production। वो mass production ह्यूज अमाउंट प्रोडक्शन के खिलाफ थे and wanted to replace it with the production by the masses। land resources, land is also resource, it provided by nature as free gift
We live on land. You know very well that we are all live in land area, and our all type of activities held especially in the land. Thus, land is a natural resource of earth, almost important. It supports natural vegetation. लैंड में ही नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम. हाउएवर, land is an asset of finite. There are three parts. In 43% area plants, in 30% area mountains, and in yellowish color 27% area plateaus area, especially in our land. Magnitude, there is important to use of available for the various purpose with the careful planning. हमें केयरफुल प्लानिंग करने के पश्चात हमें अपने लैंड का इस्तेमाल करना चाहिए, रिसोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए. इंडिया हैज़ लैंड अंडर ए वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर, नेमली माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड आइलैंड. About 43% of land area is plain, which provide facility to agriculture industry. 43% एरिया जो है वो लैंड एरिया है. वहाँ पे लैंड एरिया है, प्लेन एरिया है, और वहाँ पे हम ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटी लाइक दैट एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सब एक्टिविटीज़ करते हैं. माउंटेन अकाउंट द 30% टोटल सरफेस एरिया इन कंट्री, इंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ द सम रिवर. बहुत सारे रिवर्स जो पेरिनियल रिवर हैं, दे फ्लो फ्रॉम द माउंटेन एरिया, दे फेड फ्रॉम द माउंटेन एरिया लाइक दैट गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस एट्सेट्रा. प्रोवाइडेड फैसिलिटी टू टूरिज्म, इकोनॉमिकल एक्सेप्ट. About 27% of area in country plateau region. Plateaus are rich for the mineral, fossil fuel and forest also. Now next topic, land utilization. What is the utilization of land? Means use of land. Land resources and use for the following purpose. First, forest. Second, land not available for cultivation, जो कल्टीवेशन के लिए उपयोग में नहीं लाई जा रही ऐसी लैंड, बैरन एंड वेस्ट लैंड. बी, लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज बनाने के लिए. अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है वो किस लिए इस्तेमाल होती है? परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड, चारागाह के रूप में. लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया. बहुत सारे मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप होते हैं, जैसे आप देखते हैं टिम्बर्स के लिए ट्रीज का ग्रो अप करना. नेक्स्ट, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड 5, बहुत सारी 5 वर्ष से ज़्यादा समय से कल्टिवेशन नहीं किया गया. चौथा, फॉलो लैंड, करेंट फॉलो लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फ्रॉम 1 ईयर, 1 साल से उसमें कोई कल्टीवेशन नहीं किया, खेती नहीं की गई, दैट करेंट फॉलो. अदर दैन करेंट फॉलो, जो 5 साल से ज़्यादा खेती नहीं की गई. व्हाट इज नेट सोन एरिया? एरिया सोन मोर दैन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया. 1 साल से के अंदर से में जिन एरिया में हम एग्रीकल्चर करते हैं वो क्या बोला जाता है? नेट सोन एरिया, और साथ ही साथ नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया. द यूज ऑफ लैंड इन डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉल्यूशन, डेंसिटी, टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन एट्सेट्रा. लैंड उसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं? उसका डिवीज़न, उसका यूज़ कर सकते हैं. फिजिकल फैक्टर, जैसे ऊबड़ खाबड़ एरिया है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट करता है कि लैंड का हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, पॉपुलेशन वहाँ कितनी है, टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल हो रही है, कैपेबिलिटी, क्षमता कितनी है, कल्चर वहाँ का कैसा है, और वहाँ का ट्रेडिशन कैसे है, वहाँ की कैसे परंपरा है. तो नेक्स्ट, दिस फिगर
shows that the general land use category 9 general land use category 2014 to 15. This is the pattern how we use our land area to 60 to 61 and 14 to 15. In this graph we show these things now. So please watch this diagram at how we use earlier our land area and how we use current our area. Total geographical area of India is 3.28 million square kilometer. 3.28 million square kilometer अपने इंटायर इंडिया का लैंड यूज डाटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग मोस्ट ऑफ नियर नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट आसाम हैज बीन डन फुली. मोर some area Jammu Kashmir occupied by Pakistan, China have also surveyed. So in this way we available only 93%. The land under permanent pasture has also decreases. परमानेंट जो पास्चर लैंड है, ग्रेजिंग एरिया है या चारागाह एरिया है, वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है. हाउएवर वी आर एबल टू फीड अवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन दिस पास्चर लैंड. And what are the consequences of it? Most of other than current fallow land are either poor quality or the cost of cultivation. Cultivation के कास्ट पे या तो हमारा पास्चर लैंड कम हो रहा है या हम वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे हैं ऑफ सच हाई वेराइटी. Hence these lands are cultivated once or twice about 2 or 3 years. If these are included in net sown area, then the percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reporting area. The pattern of net sown area varies greatly from one state to another. It is over 80% of the total area in Punjab, Haryana and 10% Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Andaman, Nicobar Island. Forest area in our country so far lower than desired 33%. अपने इंडिया में अकॉर्डिंग टू नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया 33% एरिया पे हमारे फॉरेस्ट लैंड होने चाहिए, बट 33% एरिया पे अपने इंडिया में लैंड फॉरेस्ट एरिया नहीं है. एज इट वाज आउटलाइन द नेशनल फॉरेस्ट सर्वे पॉलिसी 1992. ये 1952 के अकॉर्डिंग नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत 33% फॉरेस्ट होने चाहिए अपने इंडिया में, बट ये प्रेजेंट में 33% नहीं है. The livelihood of millions of people who live on the fringe of these forests depend upon it. Apart from the land termed is the wasteland put on the non-agricultural areas. Wasteland included rocky. वेस्टलैंड में कैसे फॉरेस्ट आ रहे हैं, जैसे पथरीले एरिया है, एरिड एरिया है, बंजर टाइप का, डेजर्ट है, ऐसे एरिया आ रहे हैं जहाँ पे हम वेस्टलैंड एरिया बोले जाते हैं. द लैंड पुट इनटू अदर नॉन का एग्रीकल्चरल एरिया है, रेलवेज है, ये अदर इंक्लूड एरिया में आते हैं, एग्रीकल्चरल एरियाज में आते हैं. लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स. देखिए लैंड का हमारे क्षरण भी होता है, लैंड हमारी नष्ट भी होती है. नष्ट होने का मतलब कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल रिड्यूसेस. तो हम हाउ कैन वी डिग्रेडेट, प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं और कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं. वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन will have to the our future generation 95% of clothing obtained from the land. हम अपने 95% नीड्स जो है वो लैंड एरिया से ही पे ही डिपेंड है. फॉर द एग्जांपल फूड, खाने के लिए, शेल्टर,
घर बनाने के लिए, क्लोथिंग एंड अदर थिंग। ह्यूमन एक्टिविटी हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव आल्सो एग्रीवेटेड पेश ऑफ नेचुरल फोर्सेस काज डैमेज टू लैंड। नेचुरल ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटीज़ है वो हमारे लैंड को कहीं न कहीं बहुत तेज़ी से नुकसान पहुंचा रही है, डैमेज कर रही है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, जैसे डिफॉरेस्टेशन पेड़ों का ज़्यादा काटना, ओवर ग्रेजिंग जानवरों के द्वारा जंगलों में ज़्यादा से ज़्यादा चराना, माइनिंग करना एंड क्वायरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। माइनिंग करना, ज़्यादा से ज़्यादा कोल निकालना, नेचुरल गैस निकालना या अदर मिनरल्स की खुदाई करना, इससे क्या होता है, लैंड का क्षरण होता है, साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन भी होता है। माइनिंग साइट्स आर abandoned after excavation work and complete, leaving deep scars and trace the overbounding in state like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Odisha. Deforestation due to mining have caused severe land degradation in state like Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra. वो आप देखते हैं कि लैंड जो डिग्रेडेशन होता है माइनिंग की वजह से झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन एरियाज़ में डिफॉरेस्टेशन के साथ साथ माइनिंग भी होती है। जब माइनिंग के बाद वो एरिया ब्लॉक कर दिया जाता है चारों तरफ से, क्योंकि इट इज़ डेंजरस फॉर द ह्यूमन बीइंग एंड अदर लिविंग थिंग्स। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दीज एरियाज द ओवर डिग्रेडेशन है यहाँ पे। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन, यहाँ पे सिंचाई की वजह से ज़्यादा हमारी ज़मीन खराब हो रही है। salinity and alkalinity of the soil, the mineral processing like grinding, limestone निकालना, चूने पत्थर, सीमेंट इंडस्ट्री, सोप स्टोन, सेरामिक इंडस्ट्री, जनरल ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट एटमॉस्फेयर में ये सब क्रिएट करते हैं। It retards the process of infiltration of water into the soil and settle down the land. In recent year, industrial influence have waste have some become major source of land. बहुत सारे पोल्यूशन निकलती हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री आपने देखा, लाइम स्टोन इंडस्ट्री आपने देखा, इन सब से क्या है, ह्यूज क्वांटिटी में बहुत सारा पोल्यूशन निकलता है और ये नदियों के माध्यम से भी हमारे लैंड को डिग्रेडेट करता है, लैंड को हमारे नष्ट करता है, फर्टिलिटी रिड्यूस करता है। देयर आर मेनी वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बहुत सारे रास्ते हैं इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एफॉरेस्टेशन, जितना हम डिफॉरेस्टेशन करें, जितना पेड़ों को कटाएं फॉर आवर नीड, उतना हम एफॉरेस्टेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट हम लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को हम वृक्षारोपण करें। एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, ग्रेजिंग को हम कंट्रोल करें, मैनेजमेंट करें, कैन हेल्प सम एक्सटेंट। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांटेशन हम ऐसा करें कि शेल्टर बेल्ट बने, हमारी जो फर्टाइल सॉइल है वो पानी के साथ बह न जाए। कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करना होगा। स्टेबलेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोविंग थॉर्नी बुशेस, बालू के बड़े बड़े पहाड़ ना लगें, सैंड ड्यून्स ना लगें, हवाओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह ना जाए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, थॉर्नी बुशेस लगाने होंगे एक लाइन से बॉर्डर टाइप में, जिसे एरिड सॉइल, बालू वाली मिट्टी दूसरी जगह जाके डिपॉजिट न हो जब स्टॉर्म आए। थॉर्नी बुशेस लाइक बबूल, कीकर, सच टाइप ऑफ प्लांट्स। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटी, डिस्चार्ज डिस्पोजल इन इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड वेस्ट ट्रीटमेंट करके हम उसको रिड्यूस करें, जो खास तौर से इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट मटेरियल हैं उनका फिल्ट्रेशन करके ही नदियों में भेजें। इस तरह से इन दिस वे वी कैन प्रिजर्व, वी कैन कंजर्व आवर नेचुरल resources. So thank you for listening me, and next day we will study the soil as a resource.